Hello students, very good morning to you all and welcome to Edufly JEE NEET. Today I'm going to start the phylum Coelenterata. Okay, it's a very beautiful chapter. Let's begin with the beautiful video that was shot on Andaman by me. Okay, so this is the video. Okay, so in the video you have seen this is the brain coral. Okay, whatever this is shown here, these are all brain coral. Okay, and that the white one that you have seen वो सारे डेड हो गए हैं. ये जिनके ऊपर एक येलो लेयर है, that is they have a layer of calcium carbonate and that helps the fishes. Have you seen this yellow layer? This layer has a calcareous skeleton, that is the skeleton is composed of calcium carbonate. Okay, जो समुद्र में, ये सारे समुद्र के अंदर हम देख रहे हैं. ठीक, समुद्र में ऐसे कॉरल्स रहते हैं और जो वहाँ पे मेराइन लाइफ में जितने भी एनिमल्स है लाइक स्मॉल फिशेस, वो यहीं से खाना अपना लेते हैं लाइक फ्रॉम द कॉरल्स. एंड दिस कॉरल्स हेल्प्स इन मेकिंग द पर्ल, जो मोती कहते हैं, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस दैट मोती, दैट पर्ल. ओके, तो ब्रेन कॉरल का बहुत सारा पार्ट होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ब्रेन कॉरल, ऑर्गन ट्यूब पाइप कॉरल, प्रीसियस स्टोन होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉरल्स होते हैं. तो आई हैव शोन यू अ सिंपल लाइक ब्रेन कॉरल, मैंने आपको दिखाया है सिंपल ब्रेन कॉरल. ओके, हाउ कि ओशंस में कैसे दिखता है. और कॉरल्स जो है ना, अ मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम, दैट इज फाइलम Coelenterata. ओके, सो हैव वी सीन दिस कॉरल्स है, ये भी ब्रेन कॉरल्स है. पूरे कॉरल्स के बारे में ही हमने पढ़ा था. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, जेलीफिश. ओके, सी अर्चिन, देयर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द ओशंस, बट आई हैव शोन यू a very important one, that is the brain coral, and that is that you can say mother coral. That coral is very important in making pearl, in case of pearl industry, and also the source of food for many marine animals. Have you seen this coral so beautifully, right? So this, if you ever visited the marine life, or अगर आप नहीं visit किए तो just go and visit. It's very beautiful. It's an amazing experience. Okay, so have you seen this finger corals भी दिखेंगे आपको आगे जाके. ज़्यादातर corals के बारे में बताया because this is the main example or the main topic of today's chapter, that is the corals. Okay, see this is the corals. और have you seen that black spaces? That is known as कि वो जब corals का बहुत shapes होते हैं या बहुत सारे types होते हैं, corals के stages होते हैं, और उसी stages के बाद pearl बनता है. तो वो ब्लैक जो होल है वहाँ से ही वो पर्ल बनता है. ओके, सो दिस वीडियो इज डन. नाउ लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर. होप वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गए अबाउट कॉरल्स. ठीक है ना, तो हम बात करते हैं Coelenterata. Coelenterata की फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, द नेम दैट इज Coelenterata इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस, बट यू कैन सी इज दैट नाइडेरियंस किससे डिराइव होते हैं? फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइस्ट. तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड, और दैट यू कैन सी इज दैट नाइडेरियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स. ओके, दे कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमाटोसाइट्स. स्टिंगिंग मतलब उनके बॉडी के ऊपर ना एक लाइक चुभने वाली चीज़ें होती हैं. एंड व्हाट दैट डू इज that help in the capturing of food. Okay, the functions of nematocytes is that food capture. Okay, clear? So this is the important functions of nematocytes, that is capturing of food. Okay, these are present on the tentacles and the body. कहाँ present होते हैं nematocytes? Basically I am talking about the nematocytes right now. Nematocytes are present all over the body, on the tentacles or on and the body, all over the body they are present. Okay, now the thing is that functions of nidoblast, these three are the very important functions, and even from the NEET point of view, you students you have to remember functions of nidoblast क्या है? encourage, defense and food capturing. defense, अगर कोई जानवर अटैक कर रहा है जो नाइडेरियंस है तो वो सतर्क हो जाते हैं.
एंड वो दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम दैट एनिमल. ओके, डिफेंस है, फूड कैप्चर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइडोब्लास्ट का. ओके, देन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट hypnotoxin, hypnotoxin, this is the toxin, you can say this is the toxin that is present in nematocytes. That you can say is that hypnotoxin जो है ये कहाँ present होते हैं? Present in nematocytes. Okay, and this is the toxin जो that is harmful to other animals as well as humans. Okay, and one more thing you have to remember is that interstitial cells, these are the cells, interstitial cells, this cells helps in the preparation of totipotent cells, totipotent, okay, totipotent cells. और totipotent cells क्या करते हैं? This totipotent cells will help in the preparation of, helps in preparing nidoblast. Clear everything? So let's move on to the next slide. Okay, next characteristics is about habit and habitat. कहाँ रहते हैं? Basically, like in the video I've shown you, basically maximum of they are marine. Okay, ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाया वो समुद्र के अंदर, that is in the oceans. Where we went to Bay of Bengal, the oceans. उस ओशन में हमने जिस आइलैंड पे गए थे वहाँ पे हमने ये वीडियो कैप्चर किया था कि मराइन लाइफ कैसे दिखता है. तो ये जो नाइडेरियंस के जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं ये सारे एक्वाटिक है, मोस्टली मराइन एंड फ्यू कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं. सम आर ससाइल, दैट मीन्स नो मूवमेंट. ओके, कुछ जो है जैसे कि मैंने आपको बोला ब्रेन कॉरल जो मैंने दिखाया वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह पे सोसाइल दैट इज एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी कॉरल्स है, एक स्पेशल कॉरल है जो मूवमेंट करते हैं, दैट मीन्स दे आर फ्री एंड स्विमिंग. ओके, सोसाइल में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज ओबेलिया. ओके, सोसाइल मीन्स एक ही जगह पे रहना, देयर इज नो मूवमेंट ओके ऑफ द बॉडी. स्विमिंग में फ्री स्विमिंग, ओके, फ्री स्विमिंग में कौन आएंगे? इट्स ऑरेलिया, जेलीफिश, जाली जे आर प्रेजेंट. तो जो ससाइल है, जैसे कि जो मूवमेंट नहीं करते, उसके एग्जांपल याद रखना, दैट इज ओबेलिया. जो फ्री स्विमिंग है, जो स्विम करके पूरे समुद्र में तैरते रहते हैं आराम से, दैट इज ऑरेलिया एंड जेलीफिश. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स विच आई कुडंट शो यू इन द वीडियो, बट ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं जेलीफिश. बहुत कलर जो है ना, इट्स कलर इज ट्रांसपेरेंट, यू नो, कलर जो होता है इनका ट्रांसपेरेंट होता है. आई हैव सीन इट, सो आई एम टेलिंग यू ऑल. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिटरी. ओके, सॉलिटरी मीन्स दे लिव अलोन. मतलब जो हाइड्रा होते हैं ना वो अकेले रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे. और कॉलोनी मतलब गुच्छे में रहना. ओके, सो इन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिटरी इज हाइड्रा, and in case of colonial forms is Physalia. Physalia means Physalia is also known as Portuguese man of war. Okay, and this always comes in the exam. तो याद रखना है कि Physalia को हम Portuguese man of war के नाम से भी जानते हैं. Okay, चलो. Next we'll talk about the body symmetry. Habit and habitat is done. We'll move on to body symmetry. Body symmetry कैसा होता है उनका? Radially symmetrical animals. एंड आई हैव टोल्ड यू रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कैसे होते हैं कि कोई भी प्लान से आप उस एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हो. ओके, सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. एक्सेप्शन, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, दैट इज सी एनिमोन. सी एनिमन कैसा होता है? दे आर बाय रेडियल सिमेट्री. ओके, रेडियल में क्या होता है, हम एक प्लेन से मतलब इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इन मेनी प्लेन्स, इक्वली डिवाइड. ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ अबाउट द रेडियल एंड बाय रेडियल. ओके, सो दैट यू वॉन्ट कंफ्यूज. रेडियल में क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं हम इन मेनी प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को. ओके,
बट बायरेडियल में क्या होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इक्वली ओनली इन टू प्लेन्स. अगर सपोज दिस इज द एनिमल, तो या तो हम ऐसे डिवाइड करें या तो ऐसे डिवाइड करें, ओनली इन टू प्लेन्स. ओके, इक्वली, वो भी इक्वल डिवाइड करना होगा. ओके, इक्वली ओनली इन टू प्लेन्स. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायरेडियल सिमेट्री. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका अब देखो, पहले तो जब हम लोग ने पॉरीफेरा पढ़ा था वहां पे कैसा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. टिश्यू फॉर्मेशन वाज एब्सेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू स्टडिंग एनिमल किंगडम, यू हैव टू कंपेयर एंड स्टडी. ओके, तो इसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन, टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होता है. कहाँ शुरू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिलेंट्रेटा, दैट इज फाइलम नाइडेरियंस. क्लियर है. जर्म लेयर्स, दैट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. डिप्लोब्लास्टिक किसके कहते हैं, जिनका बॉडी 2 जर्म लेयर से डेवलप होता है, जो कि एक्टो एंड एंडो. ये बाहर का और ये इनर का लेयर. ओके, एक मिडिल लेयर होता है मेसोडर्म, दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ नाइडेरियंस. ओके, सो बॉडी कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. चलो नेक्स्ट इज बॉडी प्लान. बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट. दैट मीन्स माउथ जो है, माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है. लेकिन हमने पोरीफेरा में पढ़ा था स्पॉन्जेस में, ठीक उसी तरह का बॉडी प्लेन होता है सिलेंट्रेटा में. दैट मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस माउथ से ही आते हैं, एनस नहीं उनमें सेपरेट. तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट विल कम आउट थ्रू द माउथ. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी फॉर्म. दे एग्जिबिट 2 body forms. One is polyp and the other is medusa. And this two is very important. And from Nigerian's point of view, I am telling you कि पॉलिप और मेडुसा का ना ऑलवेज क्वेश्चंस आता है और ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है. मैं बताती हूँ आपको पॉलिप कैसा होता है. पॉलिप का जो शेप होता है ना, वो ट्यूबुलर होता है और सिलेंड्रिकल होता है. देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ. ठीक है, सो दिस इज पॉलिप शेप. ओके, ठीक है, तो इनका जो बॉडी शेप होता है ना, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ट्यूब जैसा होता है. तो ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं, दिस आउटर लेयर इज नॉन एज एपिडर्मिस. क्लियर, आई एम शोइंग यू द डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ, इट्स नॉट मच क्लियर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होते हैं. ठीक है, ये माउथ है. ओके, माउथ और एनस यू कैन से, क्योंकि दोनों एक ही है इनमें नाइडेरियंस में. ये दिख रहा है, ये पतंगी जैसे, ये क्या है, टेंटिकल्स है, एक्सक्यूज मी. और ये जो अंदर वाला पोर्शन, दिस पोर्शन हैव यू सीन, दिस इज गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी. ओके, एंड आउटर लेयर के बाद ये एक इनर लेयर भी है इनमें, एंड दैट इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसे, मेसोग्लिया. आउटर फॉर्म तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, मेसोग्लिया प्रेजेंट होते हैं. तो पॉलिप ऐसा दिखता है, ट्यूबुलर शेप होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है. इट इज यूजुअली फिक्स्ड मतलब एक ही जगह पे रहते हैं. मे बी सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है, इट्स हाइड्रा एंड एडम्सिया. एग्जाम्पल आपको याद रखनी है. और पॉलिप और मेडुसा फॉर्म, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाइट्रोजन्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चलो मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है. कैसे होता है, बिल्कुल छतरी की तरह होता है. ठीक है ना, इट्स अबाउट द शेप ऑफ अम्ब्रेला, जैसे छत्ता है ना, इस तरीके का होता है मेडुसा. उनमें वो जनरली फ्री स्विमिंग होते हैं. दैट मीन्स दे आर एबल टू स्विम, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, आराम से स्विम करते हैं. ऑलवेज सॉलिटरी होते हैं. ठीक है, मतलब लीव अलोन, अकेले ही रहते हैं, स्विम करते रहते हैं. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या है, जेलीफिश. ठीक है, तो आपको मेडुसा की शेप क्या होती है, मेडुसा में कौन से एग्जाम्पल्स एनिमल्स आते हैं, कैसे होते हैं, वेदर दे आर सॉलिटरी और वेदर दे आर कॉलोनियल और वेदर दे आर फ्री स्विमिंग और वेदर दे आर सॉलिटरी. ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर. चलो, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाजेनेसिस.
Metagenesis is the very important phenomena that is followed in case of cnidarians. Okay, metagenesis क्या होता है? It is the alternation of generation between polyp and medusa. Alternation of generation इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि पॉलिप से मेडुसा फॉर्म होगा. ओके, वापस मेडुसा टू पॉलिप होगा, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, इसीलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है. पॉलिप से मेडुसा फॉर्म होगा एंड अगेन मेडुसा टू पॉलिप, and there will be a reproduction, asexual or sexual, that is going to be discussed. Okay, both polyp and medusa are diploid, that you have to remember, that is twice and. clear है? तो ये याद रखना कि alternation of generation बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है पॉलिप और मेडुसा में. पॉलिप क्या करते हैं? दिल रिप्रोड्यूस मेडुसा तक पहुंचने के लिए, मेडुसा पॉलिप जो है मेडुसा रिप्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, और मेडुसा से पॉलिप होने के लिए मेडुसा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, एंड देन इट फॉर्म्स द पॉलिप फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल है ओबेलिया. बहुत, और ओबेलिया को क्या कहते हैं? ओबेलिया को सी फर के नाम से भी जाना जाता है. ओके, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स मैं आपको नाम बता रही हूँ सारे समुद्र में पाए जाते हैं. मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया है. देयर आर मेनी मोर वीडियोस, बट इन ऑर्डर टू मेक द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंग एंड बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको ये समझ में आए कि समुद्र में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. व्यू जो नज़ारा होता है, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. ओके, अगर आप लोग नहीं गए हो तो प्लीज़ गो एंड विजिट. ओके, तो ये ओबेलिया सीफर दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द ओशंस. ओके, दैट इज नॉट शोन इन द वीडियो, बट ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल कॉरल्स के बारे में मैंने बताया है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉरल्स का. अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया. प्लेनुला लार्वे. प्लेनुला लार्वे, दिस इज द लार्वे, फर्स्ट लार्वल स्टेजेस जो होता है ओबेलिया का, कि एक कंप्लीट ओबेलिया कैसे फॉर्म होता है. पहले प्लेनुला लार्वा होता है, लार्वा याद रखिएगा. सेकंड स्टेज में हाइड्रुला लार्वा होता है, एंड थर्ड में क्या होता है? वो हाइड्रुला लार्वा क्या करेगा? अ कंप्लीट फुल ओबेलिया फॉर्म करेगा. लार्वल स्टेजेस के बाद ही एडल्ट स्टेज होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, चलो अब हम बात करते हैं स्केलेटन. द स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. किसका स्केलेटन की बात कर रहे हैं हम? नाइडेरियंस. नाइडेरियन से चल रहा है, कोई दूसरे टॉपिक पे मत पहुंच जाना आप लोग. ओके, नाइडेरियंस का जो स्केलेटन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बहुत मैंने देखा ना, अपने ब्रेन कॉरल मैंने बताया, ब्रेन कॉरल जो इसको कहते हैं मादर कॉरल, है ना, तो वो एकदम बिल्कुल ब्रेन की शेप में रहता है, ब्रेन की शेप में ना, ब्रेन की शेप में रहता है. उसके ऊपर ना आता कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट्स होते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ आपको कॉरल्स के बारे में, ठीक है ना, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज नाइडेरियंस के बारे में पता लगेंगी, ठीक है ना. कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या होता है कि ये जो बाहर का जो आउटर लेयर है ब्रेन कॉरल का या किसी भी कॉरल में, कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है फिश के लिए. दूसरी बात, जो कॉरल्स है, जैसे कि जो कॉरल्स है वो समुद्र के अंदर है, आपको पता है सनलाइट ऑलवेज फॉल्स, सनलाइट तो गिरता है समुद्र के अंदर. तो वो सनलाइट जो क्या करता है, सनलाइट जो है ब्रेन कॉरल को हेल्प करता है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन, और ये सब चीज़ों के लिए सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जिस दिन सनलाइट पड़ना बंद हो जाए समुद्र के अंदर, स्पेशली कॉरल्स के ऊपर, वो कॉरल्स मर जाते हैं. दैट मीन्स दैट कॉरल्स इज डेड कॉरल. मैंने वीडियो में दिखाया, जो वाइट कलर के पड़े हुए हैं उनका कोई काम नहीं है, ना कोई ऑर्गेनिजम्स का खाना है. वो कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊपर डिपॉजिट रहता है तो मछली जाके खाते हैं उसे, और बहुत सारे एनिमल्स जो है उसी से अपना सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, ठीक है. जब सनलाइट नहीं पहुंच पाता अंदर तो वो क्या करते हैं, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स है वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और फिर ऐसे कॉरल्स जो है मर जाते हैं. सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो अब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन कैसे होता है इनका. जनरल बॉडी सरफेस, इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. जस्ट लाइक पोरीफेरा, ये भी ऐसे ही रहते हैं, इनका भी जो रेस्पिरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है. क्लियर है. चलो अब हम बात करते हैं एक्सक्रेशन. इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. सेम लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन भी सेम ही होता है, जनरल बॉडी सरफेस होता है. एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट मेनली क्या होता है, इट्स अमोनिया. ओके,
तो इसको क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं एमोनोटेलिक। क्लियर है? तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस, मतलब स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सर्कुलेशन। ओके, सर्कुलेशन में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है सिलेंट्रेटा का, उसको क्या कहते हैं, सिलेंटेरोन कहते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जैसे मैंने पॉलिप मेडुसा में आपको पॉलिप में बताया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी अंदर का लेयर, एपिडर्मिस के अंदर मेसोग्लिया, उसके अंदर का लेयर स्टोमक है, वहाँ पे वही क्या करते हैं, उसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या करते हैं वो, सर्कुलेशन कैसा होता है, डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड दोनों का काम होता है वहाँ। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसेसेस। नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में, बट एक और चीज याद रखनी है, सेंसोरी सिस्टम आर एब्सेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसोरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट होते हैं। स्टैटोसिस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम मार्किंग। स्टैटोसिस्ट ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, निमैटोसिस, या यू कैन से सॉरी इट्स नाइडेरियंस। व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। वो क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में बैलेंस बनाए रहते हैं, जो फ्री स्विमिंग, जो एकदम आराम से स्विम करते हैं, जो जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मछली हो, जेली फिश हो, जो नाइडेरियंस पे बिलोंग करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स, वो जो बॉडी में जो बॉडी पे बैलेंस कैसे होता है, पानी में बहुत मस्त तैरते हैं यार। हाँ, हम तो तैरने लगे, अगर नहीं तैरने आता तो डूब के मर जाए इंसान, है ना। उनमें क्या होता है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो जब वो स्विमिंग करते हैं ना, वो बॉडी को बैलेंस करके रहता है कि वो आराम से स्विम करते हुए निकल जाए। तो वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है, स्टैटोसिस्ट, वो बैलेंस करके रखता है, इसी वजह से वो स्विम कर सकते हैं। ठीक है ना, सब भगवान का देन है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्रिएचर ऑफ नेचर। ओके, चलो फ्री स्विमिंग फॉर्म। स्टेटोसिस्ट के बारे में एक और चीज जान लें कि स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट जो है, स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट इन मेडुसा, मेडुसा ऑफ ओबेलिया। ओके, पॉलिप में नहीं, मेडुसा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्टेटोसिस्ट। ओके, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हैज ए सिंगल ओपनिंग। क्या होता है इनमें, सिंगल ओपनिंग होता है, सिर्फ माउथ होता है, एनस एब्सेंट होता है, और जो भी डाइजेस्ट फूड नहीं होता ना, वो मुंह से ही वापस आ जाता है बाहर। ठीक है, तो डाइजेशन पहले क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। सबसे पहले डाइजेशन पहले गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है, देन इंट्रासेलुलर, तब इनसाइड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है। ठीक है, मतलब हर्माफ्रोडाइट मतलब पता है आपको, एक ही ऑर्गन्स, आई मीन मेल फीमेल सेम बॉडी में ही रहेंगे, तो उसको हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एसेक्सुअल, दैट इज बाय बडिंग इन पॉलीफॉर्म एंड सेक्सुअल इन मेडुसा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, पॉलीफॉर्म में होगा, और जो मेडुसा होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। ठीक है, पॉलिप मेडुसा फॉर्म करेंगे एंड मेडुसा विल अगेन फॉर्म द पॉलिप। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट में बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ऑलवेज देयर विल बी, नॉट मे, देयर श्योरिटी है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट हैज टू बी फ्यूज्ड। ओके, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है, इट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें लार्वल स्टेजेस विल बी प्रेजेंट, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस आर एब्सेंट, लेकिन कुछ में जो है लार्वा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ओबेलिया मैंने आपको बताया, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरियंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज सी फर, प्लेनुला एंड हाइड्रुला, दिस टू हैज अ larva that is known as obelia. Cystosoma and Ephydra, these two are the larva of, किसके होते हैं ये, jellyfish के। तो this two larvas you have to remember कि प्लेनुला और हाइड्रोला में ओबेलिया होता है, लार्वा ऑफ ओबेलिया है। ठीक है,
सिस्टीसोमा और इफाइड्रा जो है जेलीफिश का लार्वा। तो जेलीफिश पहले लार्वल स्टेजेस में होते हैं, सिस्टीसोमा, इफाइरा, एंड देन अ कंप्लीट जेलीफिश इज फॉर्म, जस्ट लाइक ओबिलिया का जो मैंने लाइफ साइकिल बताया वैसे ही होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। ओके, हाइड्रा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइजेरियंस, क्योंकि एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो एग्जाम्पल, डोंट स्किप द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। ओके, हाइड्रा को क्या कहते हैं? दिस इज फ्रेश वाटर पॉलिप। ओके, पॉली फॉर्म में होता है हाइड्रा। ठीक है, ओबेलिया, और ये जो कॉमन नेम है दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ओबेलिया। नेक्स्ट इज ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश। फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडाम्सिया, दैट इज सी एनिमल। चिबीपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल, मैंने अभी बताया आपको कोरल्स के। मेएंड्रीना, ब्रेन कोरल, अभी जो मैंने येलो जो दिखाया वीडियोस में दैट इज ब्रेन कोरल। कोरालियम, रेड कोरल, रेड कलर का कोरल भी होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया, बट रेड कोरल इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड इस मतलब हर जगह नहीं प्रेजेंट होता है, बिकॉज दैट इज वेरी प्रीसियस स्टोन। अगर किसी के पास हो गया वो स्टोन, दैट मतलब वो इंसान ही इज ए करोड़पति, यू कैन से। ओके, दैट इज अ वेरी प्रीसियस स्टोन जो हर जगह नहीं पाया जाता है। ओके, ब्रेन कोरल जो मैंने आपको अभी दिखाया, मेएंड्रीना। सो दिस ऑल एग्जाम्पल्स you have to make sure that you all remember. Okay, so with this I have completed today's class, that is phylum Cylindrata. Okay, if you have any doubts regarding any class, you can WhatsApp me or you can comment me in the comment section. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.